چکے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اس اہم خبر کے ساتھ کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے پرعزم ہے، افغانستان میں امن اور انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون بڑھائیں گے، پاکستان کے ساتھ تجارت میں اضافے کے عزم پر بھی قائم ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے بلاول کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ سے گفتگو میں امن، ترقی اور سلامتی کے فروغ، باہمی احترام کے ساتھ آگے بڑھنے کے سفر پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافے سے متعلق تحریک انصاف کی حکومت کا IMF سے کیا گیا معاہدہ سامنے لے آئے۔ مفتاح اسماعیل نے ٹویٹر پہ معاہدے کی دستاویزات کا اسکرین شاٹ شیئر کیا، جس کے مطابق سابق حکومت نے IMF کو آگاہ کیا کہ نومبر 2021 میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں 4 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ سابقہ حکومت کے معاہدے کے مطابق حکام پیٹرول اور ڈیزل میں 4 روپے فی لیٹر اضافہ کرتے جائیں گے، جب تک لیوی 30 روپے فی لیٹر تک نہ پہنچ جائے۔ اس سے قبل سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے IMF کو جون 2022 سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی یقین دہانی کرانے سے انکار کیا تھا۔ ہم نے سبسڈی دینے کا طریقہ دیا تھا، کہا کہ مفتاح صاحب آپ عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں، تسلیم کریں کہ PTI کی پالیسی درست تھی۔ لاہور کی انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں منشیات برآمدی کیس پر سماعت آج ہوگی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سمیت 6 ملزمان عدالت میں پیش ہوں گے۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کے جج نعیم شیخ سماعت کریں گے۔ عدالت نے بریت کی درخواست پر وکلاء سے دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ لاہور کی انسداد منشیات کی خصوصی عدالت میں منشیات برآمدگی کیس پر سماعت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ سماعت آج ہوگی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سمیت 6 ملزمان ہیں جو کہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ انسداد منشیات کی خصوصی عدالت کے جج نعیم شیخ سماعت کریں گے، جبکہ عدالت نے بریت کی درخواست پر وکلاء سے دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ بات کریں گے کچھ کراچی کے موسم کی، تو کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کراچی کا درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ آج دن میں 30 سے 32 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چلیں گی۔ شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی پیش گوئی کر دی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں تیزی سے اضافے کا امکان ہے۔ مالی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن درجہ حرارت 7 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے، جبکہ بالائی و وسیع سندھ، وسیع اور جنوبی پنجاب، بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق شدید گرمی کے باعث آبی ذخائر، فصلوں، سبزیوں اور باغات کو پانی کی کمی کا خطرہ ہو سکتا ہے اور آئندہ ہفتے انرجی کی کھپت بڑھ جائے گی۔ زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ کسان مضمون کو پانی دینے کے لیے مناسب انتظامات کریں اور محکمہ موسمیات نے عوام کو گرمی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مسلم لیگ نون نے اٹا کی تحصیل فتح جنگ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا۔ نائب صدر مریم نواز کے عمران خان پر تاک تاک کر نشانے۔ کارکنان سے خطاب میں کہا کہ عمران خان بے فیض ہوا تو دھڑام سے اس کی حکومت زمین پر گر گئی۔ ایک تقرری کیا ہوئی، اس کی آنکھیں کان بھی گئے، اندھا اور بہرا ہو گیا۔ اسلام آباد میں PTI کا لانگ مارچ آزادی مارچ نہیں بلکہ گوگی بچاؤ مارچ ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ نہیں دیں گے۔ شہباز شریف اس کی نالائکی کی داستانیں سامنے لائیں گے۔ عمران خان کے نیچے سے کرسی کھسکی، اوپر سے دماغ کھسک گیا۔ روز ٹی وی پر آ کر نئی نئی کہانیاں سناتا ہے۔ مدینہ منورہ میں نعرے بازی سے سر شرم سے جھک گیا۔ روز ٹی وی پہ آ کر نئی نئی کہانیاں
तहरीक इंसाफ का मियांवाली में सियासी पावर शो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। 20 मई के बाद किसी भी दिन लॉन्ग मार्च की कॉल देने का ऐलान कर दिया। कहा आवाम का समुंदर इस्लामाबाद में सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा करेगा। किसी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। कोई कंटेनर रोक नहीं सकेगा। चोरों को जेल पहुंचाने तक जिहाद जारी रहेगा। राना सनाउल्लाह पर 18 कत्ल और शहबाज गिल पर हमला कराने का भी इल्ज़ाम लगा दिया। बोले अगर इनके किसी कारकुन को हाथ लगाया तो 3 स्टूजेस और उनके हैंडर जिम्मेदार होंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, कौम को अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इंसाफ के इदारों से पूछता हूँ, क्या खरीदो फरोख्त पर सोमोटो नहीं लेना चाहिए था? कभी सुना है बरतानिया की जमहूरियत में ऐसा हुआ हो? जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने वाला है। इलेक्शन के वो अवाम को फैसला करने दो। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना 18 कदम करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। इन्होंने हमला करवाया मोटरवे पे, शहबाज गिल पे। मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे, हम तुम 3 स्टूडेंट्स को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये सोशल मीडिया का सवाल है। तुम्हारे इस कौम को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। मैं आज अपने इंसाफ के इदारों से पूछता हूँ, आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कभी सुना है कि बरतानिया की डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा हुआ? साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये भी कहना है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान का मकसद इक़्तिदार में आकर फ़ायदा उठाना था। सोशल मीडिया पॉडकास्ट पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि जहांगीर तरीन से इख्तलाफात शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर हुए। अलीम 300 एकड़ ज़मीन कानूनी करवाना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर का फंस गया इशू वो चीनी की। जब कीमतें ऊपर गई तो जब शुगर माफिया के ऊपर पहली दफ़ा इंक्वायरी बैठाई तो उधर डिफरेंसेस आ गए। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज़ करवा दें। तो डिफरेंसेस उधर से हुए हैं और अब वो जिधर चले गए हैं क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। इमरान खान के इल्ज़ामात पर अलीम खान भी खुलकर सामने आ गए। चेयरमैन पीटीआई को मनासरे का चैलेंज दे दिया। कहा आपके पास जो कुछ भी है बता दें, हम भी हकायक बताएंगे। इज्जत से मेरा नाम लें, मैं भी आपका इज्जत से नाम लूँगा। मेरे पास 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ ज़मीन है। ज़मीन ज़मींदारों से खरीदी गई है। जिस दिन चाहें, जिस जगह चाहें, जिस चैनल पे चाहें, जितने घंटों के लिए चाहें आए प्रोग्राम करते हैं। साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जहांगीर तरीन को भी बिठाएं और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों। फिर पता लगे आपका कि आप क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे। आप भी इज्जत और एहतराम से मेरा नाम लें, मैं भी उसी तरह आपका नाम जो है वो इज्जत और एहतराम से लेता रहूं। मुझ पे इल्जाम लगाएंगे तो चुप मैं भी नहीं रहने वाला। वफाकी हुकूमत ने गैर अखलाकी वीडियो से लोगों को बदनाम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत दाखिला को हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद फैलाने वालों को गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है ऐसे मवाद को बर्दाश्त ना किया जाए। सोशल मीडिया लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ब्लैकमेलिंग के सद्देबाब के लिए ऐसे वाक़यात को रोकेंगे। गैर अखलाकी वीडियोस, तस्वीर और ऐसा मवाद फैलाने वालों का सफाया करेंगे। FIA और मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। रेल हो या जेल, इमरान खान के साथ हो, फौज के साथ ताल्लुकात कशीदा थे, ना है ना होने चाहिए। लेकिन इदारों को कहना चाहता हूँ 31 मई से कबल इलेक्शन का ऐलान कर दें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत जिसे झूठा मरासला कहती थी अब इस पर बात करने का कह रही है। ये जहाँ भी जाएंगे इन्हें चोर ही कहा जाएगा। हुआ या जेल में हुआ, जहाँ भी हुआ लॉन्ग मार्च का साथ देंगे इमरान खान। फौज के साथ हमारे तल्लकात ना कशीदा थे
نہ ہیں نہ ہونے چاہیے. اپنے اداروں کو, اپنی اسٹیبلشمنٹ کو, جس پر مجھے فخر ہے, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 31 مئی سے پہلے الیکشن کرا لیں. اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو مراسلہ ہے سامراجی, یہ جھوٹا ہے, یہ فراڈ ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے. انہوں نے مان لیا کہ آئیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے 20 مئی تک حکومت ختم ہونے کی پیش گوئی کر دی. کہا ہماری اطلاعات ہیں کہ 3 ساتھی شہباز شریف کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. سال کے آخر میں گندم کی خریداری نہ ہونے سے آٹے کا بحران پیدا ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کو راضی کرنے کے لیے پنجاب کا پانی سندھ کو دیا جا رہا ہے. یہ حکومت انشاءاللہ 20 مئی سے پہلے فارغ ہو جائے گی اور عوام کا جو راج ہے وہ پاکستان کے اوپر بحال ہوگا. 3 اراکین جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا مزید ساتھ دینے سے انکاری. آرٹیکل 225 کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہر حالت میں 3 مہینوں کے اندر یعنی 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں. پاکستان کی فوج پاکستان کے استحکام کی علامت بھی ہے اور ضامن بھی. تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی گاڑی کو ٹکر مارنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم وجاہت علی نے ابتدائی تفتیش میں بتایا کہ خالصاً حادثہ تھا, کسی سیاسی جماعت سے ملزم کا کوئی تعلق نہیں. میڈیا سے گفتگو میں شہباز گل نے اپنے قتل کے خدشے کا اظہار کیا تھا. پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نے گاڑی طاہر نذیر نامی بندے سے رینٹ پر لی تھی. ملزم ابتدائی بیان میں بتاتا ہے کہ یہ خالصتاً حادثہ تھا, کسی سیاسی جماعت سے ملزم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ملزم وجاہت علی کا تعلق حافظ آباد سے ہے. موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے کا مقدمہ شہباز گل کے رشتہ دار جابر علی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. پولیس نے ایکسیڈنٹ شدہ گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا ہے. ملزم نے ابتدائی تفتیش کے دوران اعتراف جرم کیا. کہا یہ اتفاقیہ حادثہ تھا. ملزم کا شہباز گل یا کسی اور کو نشانہ بنانا ہرگز مقصود نہیں تھا. ملزم حادثے کے بعد کوٹ سرور انٹرچینج سے فرار ہو گیا تھا. ضلع حافظ آباد پولیس ملزم سے تفتیش میں مصروف ہے. میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے اپنے قتل کے خدشے کا اظہار کیا ہے. کہتے ہیں 7 افراد کے نام لکھ کر دے دیے, انہیں کچھ ہوا تو یہ 7 ذمہ دار ہوں گے. جب عدالت نے بیل دے دی وہاں بس نہیں چلا تو آپ کے سامنے کل جب میں لاہور سے واپس آ رہا تھا تو پیچھے گنڈے چڑھا کے, جو ایک ٹپیکل طریقہ ہے پاکستان میں, کسی کو قتل کرواؤ گے تو قتل کا پرچہ ہوگا. گزشتہ روز پیش آنے والے حادثے کے بعد موٹر وے پر الٹی گاڑی اور شہباز گل کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھامے تصاویر سوشل میڈیا پر زیر گردش رہیں, جبکہ تصاویر میں شہباز گل کو حادثے کے مقام پر صحیح حالت میں دیکھا گیا. تاہم جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر شہباز گل مختلف نظر آئے. اس دوران ان کی گردن میں کالر اور ہاتھ پر پلاسٹر دیکھا گیا, جبکہ وہ لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے عدالت پہنچے. وزیراعظم شہباز شریف سے راجہ ظفر الحق مفتاح اسماعیل سابق آئی جی پنجاب اور چینی وفد نے الگ الگ ملاقاتیں کی, جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا گیا. بہزاد سلیمی کی رپورٹ. وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں مصروف دن گزارا. مختلف سیاسی رہنماؤں نے ملاقاتیں کی. وزیراعظم سے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی ملاقات کی. وزیراعظم نے ملک میں چینی کی قیمتوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا 3 سال بعد ملک میں چینی کی قیمت میں کمی ہوئی, جو عوام کے لیے بڑا ریلیف ہے. وزیر اعظم سے راجہ ظفر الحق نے بھی ملاقات کی, جس میں ملکی سیاسی صورتحال زیر بحث آئی. شہباز شریف سے رکن قومی اسمبلی قیصر احمد شیخ نے بھی ملاقات کی, جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور انتخابی حلقے کے مسائل پر بات چیت ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق آئی جی پنجاب ذوالفقار چیمہ نے ملاقات کی, جس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال اور پولیس فورس میں اصلاحات پر بات چیت کی گئی. ادھر وزیر اعظم سے ہواوے کمپنی کے مشرق وسطی اور افریقہ ریجن کے صدر نے ملاقات کی. وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی آئی ٹی برآمدات کو $15 بلین تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. غیر ملکی کمپنیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی. بہزاد سلیمی, نیوز 1 اسلام آباد. سابق وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 9 مئی کو شام 5 بجے بنی گالہ اسلام آباد میں ہوگا. تمام سابق اور موجودہ اراکین اسمبلی کو اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایات کی گئی ہیں.
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये कहना है कि वर्कर मेरे पास अमानत है, अब अमानत बिलावल के हवाले कर दी है। नवाब शाह के गांव लाल मोहम्मद बरोही में जयालों से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि अब लोग 1970 से वोट दे रहे हैं। बड़ों ने भी हमेशा पीपी का साथ दिया, आवाम ने मुझे बहुत प्यार दिया, आवाम से प्यार का रिश्ता है। मैं समझता हूँ कि 1971 से आप हमें पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं और हमेशा दिए, आपके वालिदैन ने दिए हैं, आपके बुजुर्गों ने दिए हैं, अब आपके बच्चे दे रहे हैं, आपकी बहनें दे रही हैं, आपके बेटे दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला है प्यार का जो चल रहा है भुट्टो साहब से लेके आप तक और मेरे बाद बिलावल और इंशाल्लाह आसिफ तक। ये प्यार का रिश्ता है हमारा, सबसे हमने प्यार किया है। और यहाँ आपको बताएं कि नेपरा ने बिजली की कीमतों में 2 रुपये 86 पैसे का इजाफा कर दिया है। बिजली मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। कीमतें महंगी होने से सार्फिन पर 29 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के सार्फिन के लिए भी बिजली 1 रुपये 38 पैसे महंगी कर दी गई है। बिजली फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। थाना सोहला इस्लामाबाद के इलाके DHA फेज 2 में घरेलू रंजिश पर फायरिंग करके बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, अहलिया और बहू को जख्मी कर दिया। कातिल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद उजैर ने घरेलू तनाज़े पर मामूली तल्ख कलामी के बाद मुश्तइल होकर फायरिंग की, जिसकी जद में आकर मुल्जिम की अहलिया अनीसा, बेटा रमीज और बहू निमरा शदीद जख्मी हो गई। बाद अज़ां मुल्जिम का बेटा खून ज्यादा बह जाने के बाइस दम तोड़ गया, जबकि मुल्जिम ने वाक़े के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग के दौरान गोलियां लगने से जख्मी मुल्जिम की अहलिया और बहू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक पुलिस ने मौके से तमाम शवाहिद जमा करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गुजरात का रुख करेंगे, जहां पर माजूर खातून की लाश की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या हुआ। पुलिस ने मतूफ़े के मामू की मदियत में मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। खातून की लाश की बेहुरमती का दिल खराश वाक़या थाना डांडा के इलाके में पेश आया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 5 मई को 20 साला माजूर लड़की का इंतकाल हुआ, जिसकी तदफीन 4 मई को की गई। अगले रोज 5 मई की रात को मुल्ज़िमान ने कब्र से लाश निकाल कर फेंक दी। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने लड़की के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन और RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरात में खटाला फाटक के करीब मोटरसाइकिल ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मर्द, खातून और बच्चा शामिल हैं। पाकपतन में मुस्लिम लीग नून के MP नवीद अली के वालिद राना अहमद अली को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक सीनियर लीगी रहनुमा की लाश कमरे में मिली। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। हमजा शहबाज ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा देने के अहकामात जारी कर दिए हैं। पंजाब में ईद तातीलात के दौरान हादसात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। मेडिकल और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 554 लोगों की अमवात हुई। ईद तातीलात में रेस्क्यू ने 21,974 एमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया। मेडिकल और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में 554 लोगों की अमवात हुई। ईद तातीलात में 6,929 एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए।
पंजाब भर में रोड एक्सीडेंट में 58 अमवात हुई। जराइम के वाकयात में 22, डूबने के वाकयात में 19, करंट लगने और बुलंदी से गिरने के वाकयात में 10, जबकि दीगर वाकयात में 10 अफराद जाँ बहक हुए। 80% से जायद एक्सीडेंट मोटरसाइकिल सवारों के हुए। पंजाब भर में नुमाया एमरजेंसीज में 769 फायर, 673 क्राइम और 472 डिलीवरी एमरजेंसीज रिपोर्ट हुई। पंजाब एमरजेंसी डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा इदारों-शुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा एमरजेंसीज लाहौर शहर में रिपोर्ट हुई। लाहौर शहर में 3100, फैसलाबाद में 1692, मुल्तान 1539 और गुजरांवाला में 1259 एमरजेंसीज रिपोर्ट हुई। सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साने हमारी केस में एंटी करप्शन को बेज़ाब्तगियों और तामीरात के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदालत ने महकमा CNW से झीगा गली पार्किंग प्लाजा और महकमा जंगलात से जंगलात की ज़मीनों पर बनने वाली इमारतों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। सानिया मरी केस की समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने की। अदालत में DG एंटी करप्शन, चीफ ऑफिसर, TMA, महकमा हाईवे और रेस्क्यू हुकाम पेश हुए। अदालत ने एंटी करप्शन हुकाम को मरी में होने वाली बेज़ाब्तगियों और तामीरात की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि गफलत बरतने, तकर्रुर तबादले करवाने वालों के खिलाफ अलग से फैसला देंगे। पाकिस्तान की जन्नत को नोचने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। अदालत ने महकमा CNW से झीका गली पार्किंग प्लाजा का रिकॉर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जंगलात की जमीनों पर बनने वाली इमारतों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान ने यूक्रेन में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन के अवाम के लिए इंसानी इमदाद की दूसरी खेप भेजने के लिए इक़दाम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खर ने यूक्रेन के हवाले से डोनर्स कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के निफाज के लिए उसूली मौके पर बात की। पाकिस्तान यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए सिफारती काविशों पर जोर दे रहा है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में पोलैंड सर्जन के वज़राए आज़म का किरदार काबिल तहसीन है। जालिम और काबिज भारतीय फ़ौज के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने मज़ीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक काबिज भारतीय फ़ौज ने ज़िला इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन के आड़ में एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शहीद होने वाले तीनों नौजवान निहत्ते और मकामी कॉलेज में पढ़ते थे। खेल के हवाले से आपको अपडेट कर दें कि दौरा यूरोप के बाद कौमी हॉकी टीम वतन पहुंच गई। पाकिस्तान ने हॉलैंड, स्पेन और बेल्जियम के खिलाफ मैचेस खेले। 5 मैचेस में से 2 में कामयाबी मिली। लाहौर से एजाज शेख की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान हॉकी टीम दौरा यूरोप मुकम्मल करने के बाद आज इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंची। फेडरेशन ऑफिशियल्स ने टीम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ने बेल्जियम, हॉलैंड और स्पेन के खिलाफ मजमूई तौर पर 5 मैचेस खेले। 2 में फतह समेटी और 3 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी टीम ने मद्दे मुकाबले टीमों के खिलाफ 14 जबकि मुखालिफ टीमों ने 18 गोल किए। गैर मुल्की कोच कहते हैं खिलाड़ियों को दौरा यूरोप पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एशिया कप की तैयारियों के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप 10 मई से लाहौर में शुरू होगा। इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। रवां बरस चीन में होने वाले एशियन यूथ गेम्स कोरोना के बायस मंसूख कर दिए गए। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने तस्दीक कर दी। खेलों के लिए एक और बुरी खबर, रवां बरस चाइना में होने वाले एशियन यूथ गेम्स कोविड के बायस मनसूख हो गए। एग्जेक्टिव बोर्ड, एशियन गेम्स कमेटी और चीनी हुक्काम ने बाहमी मुशावरत से फैसला कर लिया। कमेटी के मुताबिक कोविड की सूरत-ए-हाल की वजह से गेम्स में खिलाड़ियों की शिरकत नहीं हो सकती। काउंसिल के मुताबिक एशियन गेम्स की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वर्ल्ड चैंपियन रेसलर इनाम भट्ट और वशु के चैंपियन माज खान कहते हैं तैयारी भरपूर थी, गेम्स मुलतवी होने का अफसोस है। एशियन गेम की तैयारी कर रहे थे हम लोग और चूँकि बदकिस्मती से पोस्टपोन हो चुका है और हमारी तैयारियाँ जारी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द नई डेट अनाउंस हो जाए ताकि हम लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। बहुत ही अफसोसनाक खबर सुनने में आई है कि इसी साल जो एशियन गेम्स
चाइना में होने जा रही थी वो कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दी गई हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी थी तमाम पाकिस्तान के खिलाड़ियों की। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहुत अच्छा कैंप लगाया हुआ था, हम खुद भी इसी कैंप में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गेम्स जो है इस वक्त पोस्टपोन हो गई हैं। अगले एशियन यूथ गेम्स 2025 में ताशकंद में शेड्यूल हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप आज से कराची में शुरू होगा। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 18 मई तक जारी रहने वाले कैंप में 26 खिलाड़ियों को तलब किया गया है। आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, डियाना बेग और फातिमा सना 17 मई से कैंप ज्वाइन करेंगी। चारों क्रिकेटर्स दुबई में विमेंस T20 टूर्नामेंट में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेंस टीमों के दरमियान सीरीज़ 24 मई से कराची में खेली जाएगी। और यहाँ आपको खबर दें, लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह पेश हो गए हैं। इंसदाद मनशियात अदालत में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत और खुसूसी अदालत के जज नईम शेख केस पर समाअत करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अदालत में पेश हो गए हैं। लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह पेश हो गए हैं। इंसदाद मनशियात अदालत में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस के हवाले से आपको अपडेट करें। इंसदाद मनशियात के खुसूसी अदालत के जज नईम शेख केस पर समाअत करेंगे। लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अदालत पहुँच गए हैं। इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत के जज नईम शेख केस पर समाअत करेंगे। लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अदालत में पेश हो गए हैं। फैसल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? हाँ जी, बिल्कुल मनशियात बरामदगी का ये केस है और अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह जो कि वाकई वजीर हैं, इंसदाद मनशियात की खुसूसी अदालत में पेश हो गए हैं। और ये जो है मतलब इन पर इल्ज़ाम है कि 5 मुल्ज़मान समेत इनसे 15 किलो मंशियात जो है वो बरामद हुई थी और इन्हीं के एक जो है शरीक मुल्ज़िम है उसने बरीयत की दरख्वास्त भी रखी है। उसने बुखला आज अपने फाइल भी देंगे और आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हाजिरी लगाने के बाद फिर वीडियो पे वसूल भी करेंगे और अदालत में उनके वकील ये बात भी करेंगे कि ये अब 3 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर गया है, अभी तक 15 किलो मंशियात बरामदगी की वीडियो को जिसका बार बार तस्करा किया जा रहा था वो आज तक पेश नहीं की गई और यही वजह कि ये वाले केस में अब तक फर्द जुर्म भी आज नहीं हो सकी और एक भी रिकॉर्ड ना होने के बावजूद ये वाला केस जो है इतना लंबा खींचा जा रहा है। तो आज जो है मंशियात विभाग के जज ये वाले आम केस पर समाअत करेंगे और अब से कुछ देर बाद बाकायदा समाअत का आगाज भी कर दिया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा फैसल खान, ये भी बताइएगा कि 6 मुल्ज़िमान भी अदालत में पेश हुए हैं, दीगर जो मुल्ज़िमान थे, तो फर्द जुर्म आयद हो सकी है आज? हाँ जी, फर्द जुर्म पहले भी आयद नहीं हो सकी और आज भी कोई इम्कान नहीं है क्योंकि फर्द जुर्म के लिए जरूरी होता है कि तमाम मुल्ज़िमान अदालत में मौजूद हों और आज जो है इन 6 मुल्ज़िमान में से एक मुल्ज़िम जो है वो एक तो अदालत में मौजूद नहीं है, उसकी जानिब से हाजिर माफी की दरख्वास्त आई है और दूसरा ये कि इन 6 में से एक मुल्ज़िम ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर रखी है और अगर बरीयत की दरख्वास्त ऑलरेडी अदालत में दायर कर दी जाए तो अब जब तक वो दरख्वास्त का फैसला नहीं होता तो उस वक्त तक फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकती। तो फर्द जुर्म आयद होने का तो इम्कान आज जो है बिल्कुल नहीं है। आज बस मुल्ज़िमान अपनी हाजिर रिकॉर्ड करवाएंगे और वो जो मुल्ज़िम है शरीक मुल्ज़िम जिसका नाम अब्दुल रहमान है वो अपनी बरीयत की दरख्वास्त है उसके वकील सिर्फ दलाइल देंगे और इसमें मजीद कोई कार्रवाई जो है उसका कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान। मजीद अपडेट भी आपसे इस हवाले से लेते रहेंगे। लाहौर की इंसदाद मनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस की समाअत और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अदालत में पेश हो गए हैं, जबकि 6 दीगर मुल्ज़िमान भी अदालत में पेश हो गए हैं।
عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں پر نئی رپورٹ جاری کر دی۔ ڈیٹا کے برعکس 14.9 ملین سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ کتنی ہلاکتیں ہوئی؟ عالمی ادارہ صحت کی نئی رپورٹ نے ہلچل مچا دی۔ WHO کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں کووڈ-19 سے 47 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جو سرکاری ریکارڈ سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہیں۔ اب تک جن اموات کو شمار نہیں کیا گیا ان میں سے تقریباً نصف بھارت میں تھیں۔ تاہم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انڈیا میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد خطرناک وائرس سے مارے جا چکے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی سابق حکومت کے دور میں سرکاری اعداد و شمار سے 8 گنا زیادہ اموات ہوئی۔ جان لیوا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چھپانے میں صرف بھارت یا پاکستان ہی نہیں بلکہ مصر اور میکسیکو سمیت کئی دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آپ کو خبر دیں کہ ڈریگن فلموں کے شائقین ہو جائیں تیار۔ HBO سیریز کی فلم ہاؤس آف دی ڈریگن کا دوسرا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ فلم رواں سال 21 اگست کو ریلیز ہوگی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ نیوز 1 کے ساتھ رہیے گا۔